Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is a delight for us to know that you've tuned in to listen to this broadcast. हम जानकर बहुत आनंदित हैं कि इस प्रसारण में आप सम्मिलित हुए हैं। Today we're going to commence a new series of messages. आज हम एक नई संदेश श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। It has to do with the 7 signs or miracles from the Gospel of John. इसका संबंध यूहन्ना रचित सुसमाचार में दर्ज 7 चिन्हों या चमत्कारों से है। I hope that you will follow with us in the scripture from the Gospel of John. आशा करता हूं कि आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार के वचनों पर गौर करेंगे। The word miracle has been used and abused so often in recent times. चमत्कार शब्द का पिछले कुछ समय में अक्सर और गलत प्रयोग हुआ है। In some circles, miracle is used to define anything and everything. कई दायरों में चमत्कार का प्रयोग हर बात और किसी भी बात को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। In other circles, miracles become identical with magic and trickery. कई और दायरों में चमत्कार को जादू और चालाकी के साथ जोड़कर देखा जाता है। Yet in other circles, miracles are viewed with skepticism. कुछ और दायरों में चमत्कारों को संदेहवाद के साथ देखा जाता है। In fact, I know about a skeptical Sunday school teacher who was teaching a group of 6th graders. बल्कि मैं एक ऐसे संदेहवादी रविवार्य स्कूल शिक्षक के बारे में जानता हूं जो 6ठी श्रेणी के बच्चों को पढ़ा रहा था। And he said to these bright and discerning children, और उसने इन होशियार और समझदार बच्चों से कहा, when Moses led the Israelites through the Red Sea, it wasn't really a sea at all. जब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र में से लेकर गया तो ये वास्तव में समुद्र नहीं था। Then the teacher continued, शिक्षक ने आगे कहा, actually Moses and the Israelites walked across a 2-inch deep marsh called the Red Sea. असल में मूसा और इस्राएली सिर्फ 2 इंच गहरी दलदल में से होकर गुजरे जिसे लाल समुद्र कहा गया। At that point, one of these bright 6th grade students spoke out. तभी इन 6ठी श्रेणी के होशियार बच्चों में से एक बोला, Wow, then it must have been a real miracle when God drowned Pharaoh's whole army in a little puddle of water. वाह, तो फिर ये सचमुच एक महान चमत्कार रहा होगा जब परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को उस 2 इंच पानी में डुबोकर मार डाला। The scripture tells us that a miracle takes place when God's power intervenes in the natural world with supernatural power. वचन हमें बताता है कि चमत्कार तब होता है जब परमेश्वर की शक्ति का प्राकृतिक संसार में अप्राकृतिक या अलौकिक रूप से हस्तक्षेप होता है। The Lord Jesus Christ demonstrated again and again that as God in human flesh, his miracles were foolproof. प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ये सिखाया कि मानव देह में परमेश्वर होते हुए उसके चमत्कार पूर्ण असली थे। They were instantaneous. वो तत्कालिक थे And they had 100% success rate. और वो 100% सफल थे। Miracles were Jesus' demonstration of his power over nature and over demons. चमत्कार प्रकृति और दुष्ट आत्माओं पर यीशु की शक्ति का प्रमाण थे। Miracles were Jesus' demonstration of his power over diseases and over death. चमत्कार मृत्यु और बीमारियों पर यीशु की शक्ति का प्रमाण थे। Miracles were Jesus' demonstration of his amazing and astounding power as God incarnate. चमत्कार यीशु की परमेश्वर देहधारी के रूप में उसकी अद्भुत और विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण थे। And that is why John, the disciple whom Jesus loved, uses a special word for describing Jesus' miracle. और इसीलिए यूहन्ना वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था यीशु के चमत्कारों का वर्णन करने के लिए विशेष शब्द का इस्तेमाल करता है। He uses the word Simeon or a sign. वो सिमेओन या चिन्ह शब्द का इस्तेमाल करता है। As far as John was concerned, जहां तक यूहन्ना की बात है, Jesus' miracles were a definite sign तो उसके अनुसार यीशु के चमत्कार निश्चित चिन्ह थे and clear indication of who Jesus is. और इसका स्पष्ट संकेत कि यीशु कौन था। As far as John was concerned, जहां तक यूहन्ना की बात है, Jesus' miracles were the sign that he is the Messiah and divine Son of God. यीशु के चमत्कार चिन्ह थे कि वो ही मसीह और परमेश्वर का ईश्वरीय पुत्र है। John tells us again and again यूहन्ना बार बार हमें बताता है that the disciples saw and believed. कि शिष्यों ने देखा और विश्वास किया। The crowd stood in amazement and believed. भीड़ अचंभित हुई और विश्वास किया। According to John's gospel, these signs were given so that you may believe. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार ये चिन्ह इसलिए दिए गए ताकि आप विश्वास करें।
John records 7 of these Simeons or signs in his gospel. यूहन्ना अपने सुसमाचार में इन सिम्योन या चिन्हों में से 7 चिन्ह दर्ज करता है. That is 7 before the resurrection and 1 after the resurrection, making a total of 8. वो है 7 यीशु के पुनरुत्थान के पहले और 1 पुनरुत्थान के बाद का, जो कुल 8 हैं. If you are joining us for the first time today, we are going to begin a series of messages about these 7 signs in the Gospel of John. यदि आज आप पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में दर्ज इन 7 चिन्हों पर आधारित एक नई संदेश श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं. Each of these 7 signs provide us with a deep spiritual truth. इन 7 में से हर चिन्ह हमें एक गहरा आत्मिक सत्य बताता है. They show us our inadequacy and Jesus' all-sufficiency. ये हमें हमारी अपर्याप्तता और यीशु की पूर्ण भरपूरी दिखाते हैं. They show us our inability to cope and God's provision. ये हमें हमारी सामना करने की असमर्थता और परमेश्वर का प्रावधान दिखाते हैं. Thus, in changing water into wine, इसलिए पानी को दाखरस में परिवर्तित करने में, in healing of the sick, बीमार को चंगा करने में, Jesus defeated our crippling disabilities. यीशु ने हमारी अपंग असमर्थता को हराया. In the feeding of the multitudes, भीड़ को खिलाने के द्वारा Jesus demonstrated his inexhaustible resources in the face of our barrenness. यीशु ने हमारी निष्फलता के मुंह पर अपने असीम साधनों का प्रमाण दिया. In walking on the water, पानी पर चलने के द्वारा Jesus contrasted our helplessness in the face of the awesome forces of nature and his mastery over it. यीशु ने प्रकृति की अद्भुत शक्ति और इस पर अपनी प्रभुता के सामने हमारी दुर्बलता का अंतर दिखाया. In the opening of the eyes of the blind man, अंधे व्यक्ति की आंखें खोलने के द्वारा Jesus revealed our natural blindness and himself as the light of the world. यीशु ने हमारे प्राकृतिक अंधेपन को और खुद को जगत की ज्योति के रूप में प्रकट किया. In the raising of the dead, मुर्दे को जिलाकर we see our defeat by death and Jesus' victory over death. हम मृत्यु से अपनी हार और मृत्यु पर यीशु की विजय को देखते हैं. Each miracle has a significance and a meaning. हर चमत्कार का एक महत्वपूर्ण अर्थ और महत्व है. Each miracle is intended to point us to God and God's provision in Jesus Christ. हर चमत्कार का मकसद है हमें परमेश्वर और यीशु मसीह में उसके प्रावधानों को दिखाना. Each miracle is to the glory of God. हर चमत्कार परमेश्वर की महिमा के लिए है. Each miracle has spiritual meaning. हर चमत्कार का आत्मिक अर्थ है. Each miracle conveys to us some deeper biblical principle. हर चमत्कार हमें बाइबल का कोई खास गहरा सिद्धांत बताता है. So in today's message, from the miracle of changing water into wine, we see a sign. तो आज के संदेश में पानी को दाखरस में बदलने के चमत्कार में हम एक चिन्ह देखते हैं. This sign is for the life-giving power of Christ against the ritualism of Judaism. ये चिन्ह है यहूदियों के रीति रिवाज के विरुद्ध यीशु मसीह की जीवन देने की शक्ति के लिए. It signifies that there is a transforming power with Jesus. ये दिखाता है कि यीशु के पास परिवर्तित करने की शक्ति है. Jesus changes the water of Christless religion into the richness and fullness of his grace. यीशु मसीह रहित धर्म के पानी को अपने अनुग्रह की पूर्णता और भरपूरी में परिवर्तित करता है. Jesus changes the water of uncertainty and legalism into the wine of liberty and eternal life. यीशु अनिश्चितता और विधिवादिता के पानी को स्वतंत्रता और अनंत जीवन के दाखरस में परिवर्तित करता है. Jesus changes the water of the imperfection of the law into the wine of the perfect gospel of the good news. यीशु व्यवस्था की अपूर्णता को खुशखबरी के सुसमाचार के उत्तम दाखरस में परिवर्तित करता है. Jesus changes the water of the dreariness and the drudgery of everyday life into the wine of his joy and contentment. यीशु प्रतिदिन के जीवन की उदासता और नीरसता के पानी को अपने आनंद और संतुष्टि में बदल देता है. Turn with me please to John chapter 2 verses 1 to 10. कृपया मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से 10 पद. तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहीं थी. यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे. जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है. तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम,
मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। The story is familiar to many of us. ये कहानी हम में से काफी लोग जानते हैं। Jesus had just begun his public ministry. यीशु ने अभी अभी अपनी सार्वजनिक सेवकाई प्रारंभ की है। He goes to a wedding of someone presumably related to Mary, his mother. अनुमान है कि वो अपनी माता मरियम के किसी संबंधी के विवाह में गया था। Some traditions say that Mary was a sister of the bridegroom's mother. कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि मरियम दूल्हे की मां की बहन थी। If that is the case, that explains Mary's deep concern for saving this poor family from the embarrassment and the shame of not having enough wine. यदि ऐसी बात है तो इससे मरियम की इस गरीब परिवार को पर्याप्त दाखरस ना होने के कारण होने वाली बदनामी और शर्मिंदगी से बचाने की चिंता का कारण पता चलता है। In the ancient times, there was a strong element of reciprocity about weddings. प्राचीन समयों में शादियों में काफी बड़े स्तर पर आदान प्रदान होता था। Also, certain legal actions could be taken by the father of the bride if her groom and his father did not provide proper festivities. लड़की का पिता कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता था यदि दूल्हा और दूल्हे के पिता ने उचित इंतजाम नहीं किया होता था। You have to understand this kind of wedding to understand the intensity of the situation. आपको स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए इस प्रकार की शादी को समझना जरूरी है। Before the marriage can take place, a betrothal ceremony has to take place. शादी से पहले सगाई की रस्म होती थी। This is a lot more than just an engagement party. ये मात्र सगाई की रस्म से कहीं बढ़कर था। This is a contractual and solemn pledging of the couple to each other. ये जोड़े का एक दूसरे को संविदात्मक और औपचारिक प्रण था। The betrothal ceremony was so binding that to break it would be the equivalent of divorce proceedings. सगाई की रस्म इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि इसे तोड़ना तलाक प्रक्रिया के बराबर था। At the conclusion of the betrothal period, which is negotiated by the parents, marriage takes place. सगाई के समय के बाद जिसमें माता पिता शामिल होते थे, शादी शुरू होती थी। Normally a wedding would take place on a Wednesday if the bride was a virgin and on a Thursday if she was a widow. सामान्य तौर पर यदि दुल्हन कुंवारी हो तो शादी बुधवार को होती और यदि दुल्हन विधवा है तो गुरुवार को। On the wedding night, the bridegroom and all of his male friends make their way in a procession to the bride's house. शादी की रात को दुल्हा और उसके सभी पुरुष मित्र जुलूस के रूप में दुल्हन के घर जाते। This would often take place at night so that their procession was a spectacular torchlight procession. ये अक्सर रात के समय किया जाता था कि उनका जुलूस मशालों की रोशनी में शानदार लगे। The bridegroom knocks at the door of the bride's house. दूल्हा दुल्हन के घर का दरवाजा खटखटाता। When the door is open, the groom makes certain promises to the father of the bride. जब दरवाजा खोला जाता तो दूल्हा दुल्हन के पिता से कुछ खास वादे करता। Then the bridegroom and the bride join in the procession back to the groom's house where the wedding takes place. फिर दुल्हन भी जुलूस में शामिल होकर दूल्हे के साथ दूल्हे के घर में आ जाती जहां शादी होनी होती। The wedding festivities were not just a simple dinner or a banquet. शादी का उत्सव कोई साधारण सा रात्रि का खाना या भोज नहीं था। Some wedding feasts would last as long as a week or even longer. कई विवाह भोज तो हफ्ते भर से भी ज्यादा चलते थे। Sometimes before the end of this particular wedding feast, the wine ran out. इस विशेष विवाह भोज के खत्म होने से पहले किसी समय दाखरस खत्म हो गया। Presumably 2 or 3 or 4 days into the feast. अनुमान है कि भोज के 2, 3 या 4 दिन के बाद। Running out of the beverage in the middle of your festivities means that you are too poor to adequately provide for your wedding. आपके उत्सव के बीच में ही आपका पीने का सामान खत्म हो जाने का अर्थ था कि आप गरीब हैं, शादी का खर्चा उठाने के योग्य नहीं हैं।
That is a cause for permanent shame and embarrassment. यह स्थायी शर्मिंदगी और लज्जा का कारण था। This could cause the father of the bride to sue the groom for not fully discharging his duty of hospitality. इसकी वजह से दुल्हन का पिता दूल्हे पर मेहमान नवाजी की जिम्मेवारी पूरी तरह से पूरी ना करने के लिए मुकदमा भी कर सकता था। In most current cultures, if something like this happened, आज की अधिकांश संस्कृतियों में यदि ऐसा कुछ होता है, we would go out and talk about the bride's father behind his back and say how cheap a host he was, and that would be it. तो हम बाहर जाकर दुल्हन के पिता की पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि वो कितना घटिया मेजबान है। Back then, it was a bit more serious than that. उस समय ये इससे थोड़ी अधिक गंभीर बात थी। I want to say something here as an aside before I get to my message. संदेश पर जाने से पहले मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। Some people try to use this passage as an excuse for consuming an inordinate amount of alcohol. कुछ लोग वचन के इस भाग को अनियमित मात्रा में शराब पीने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। That is wrong. ये गलत है। Most scholars argue that the wine in those days was so mixed with water that it had no more than 2 or 3% alcohol content. बहुत सारे विद्वानों का विवाद है कि उन दिनों में दाखरस में इतना अधिक पानी मिलाया जाता था कि इसमें नशे की 2 या 3% से अधिक मात्रा नहीं रह जाती थी। And that is why Leviticus 10:9 makes a distinction between wine and strong drink. और इसीलिए लेवियों की पुस्तक 10 अध्याय का 9 पद दाखरस और ज्यादा नशे में अंतर बताता है। The mixture was 3 parts water and 1 part wine. मिश्रण था 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा दाखरस। In other words, you would have to drink about 22 glasses of this kind of wine to get the same effect of 2 alcoholic drinks. दूसरे शब्दों में आपको नशे के 2 गिलासों जितना असर पाने के लिए इस प्रकार के दाखरस के 22 गिलास पीने की जरूरत थी। So no one can use this passage as an excuse for using alcohol. तो इस भाग को कोई भी शराब के इस्तेमाल के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। Now back to the message. अब वापस संदेश पर आते हैं। Up to this point of his life, Jesus performed no miracles. यीशु ने अपने जीवन के इस समय तक कोई चमत्कार नहीं किया था। This was his first. ये उसका पहला चमत्कार था। But Mary knew who he was. परंतु मरियम जानती थी कि वो कौन था। Mary knew what the angel told her before his birth. मरियम जानती थी जो स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म से पहले उससे कहा था। Mary knew that she conceived him while she was still a virgin. मरियम जानती थी कि वो तब उसके गर्भ में था जब वो कुंवारी ही थी। So she asks if he would supernaturally intervene. तो वो पूछती है यदि वो अलौकिक रूप से कुछ करेगा। She asks him to save these folks from having a permanent scar in the community. वो उससे कहती है कि वो इन लोगों पर समाज में स्थायी धब्बा लगने से उनको बचा ले। By the way, when Jesus calls Mary his mother woman in verse 4, खैर जब 4 पद में यीशु अपनी माता मरियम को नारी पुकारता है this is not rudeness. तो ये अशिष्टता नहीं है। This is a term of endearment of that time. ये उस समय लाड प्यार का एक नाम था। And so Mary asks the servants to do whatever he tells तो them. मरियम दासों से उसके कहे अनुसार करने के लिए कहती है। Jesus asks the servants to fill the 6 jars with water. यीशु दासों से 6 मटकों को पानी से भरने के लिए कहता है। These jars of water were used in the ritual of purification. पानी के ये मटके शुद्ध करने की रीति के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। And when they were filled to the brim, और जब वो ऊपर तक भर गए, Jesus changed the water into wine and then they served it to the guests. यीशु ने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने अतिथियों को पीने के लिए दिया। I want you to tune in next time and I will tell you the spiritual significance of this miracle. मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी सुने और मैं आपको इस चमत्कार के आत्मिक महत्व के बारे में बताऊंगा। My listening friends, it's very important that you tune in so that you get the full understanding of this miracle. मेरे श्रोता मित्रों, बहुत जरूरी है कि आप अगली बार भी सुने ताकि आप इस चमत्कार को पूर्ण रीति से समझ सकें। Because I'm going to tell you some things that you might never expect to hear about this miracle. क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इस चमत्कार के बारे में सुनने की आशा आप शायद कभी ना करें। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।